Hello students, welcome to my third video on nutrition in animals. In my previous video, I taught you about the alimentary canal and that too the human digestive system in detail. So let's move forward. Why do we get hiccups? In Hindi, we call hiccups as hichki. Now look at this human respiratory tract diagram. This is esophagus, also called food pipe. Main function of food pipe is to take the food from the mouth and then take it to the stomach. And this is windpipe, also called as trachea. Its main function is to take the air which we breathe from the nostrils to the lungs. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, these two pipes, esophagus and the windpipe or the trachea, they are located adjacent to each other. बिल्कुल पास पास they are located. Then how come the food is being prevented from entering into the windpipe and how it enters the esophagus? उसको कैसे पता चलेगा food को कि मुझे windpipe में नहीं जाना है और esophagus में जाना है, food pipe में जाना है? So what happens is when we swallow the food, then there is a piece of cartilage. ऐसा करके एक squarish सा piece of cartilage. This is called as epiglottis. What we call it? Epiglottis. When we swallow, this epiglottis or the piece of cartilage, it covers the mouth of the windpipe, forming a bridge over which the food will slide and will enter the esophagus. But if we laugh too much or we speak too much or we eat food in hurry, then what happens? This piece of cartilage, that time also it covers the windpipe, but a little bit of windpipe remains open and some of the food particles enters the windpipe, which causes hiccups. But hiccups can easily be cured either by drinking a little bit of warm water or by coughing. So it is advised not to eat food in a hurry or to laugh too much or to talk too much while eating the food. What is tongue? Tongue is a fleshy muscular organ in the mouth or in the buccal cavity which is attached at the back to the floor of the buccal cavity. Okay? टंग क्या है? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मसल है बेसिकली ये, और ये आपके माउथ या फिर बक्कल कैविटी के बैक पे इट इज अटैच्ड. एंड जो इसका फ्रंट पार्ट होता है, दैट इज द फ्रंट ऑफ द टंग इज केप्ट ओपन सो दैट इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. ये ओपन होता है, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? सो दैट इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. फंक्शंस क्या है टंग के? फर्स्ट, मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड. जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था, आई विल रिपीट अगेन, कि जब हम खाना खाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ने सिक्रीट किया सलाइवा. अब उस सलाइवा के साथ उस खाने को मिक्स होना है. सॉरी. अब जो ये मिक्स होना है इसका काम कौन करेगा? टंग करेगी. इसको हेल्प करेगी सलाइवा को आपके फूड के साथ अच्छे से मिक्स होने में. सेकेंड फंक्शन इज swallowing the food into the food pipe. अब सलाइवा के साथ आपका खाना अच्छे से मिक्स हो गया है, उसके बाद खाने को कहाँ जाना है? एसोफेगस में. अब उसको जो पुश करेगा उस च्यूड फूड को जो मिक्स है सलाइवा के साथ, उसको पुश करना है एसोफेगस में. वो काम कौन करेगा? आपका टंग. थर्ड फंक्शन इज एसेंशियल फॉर स्पीकिंग. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो टंग का फ्रंट पार्ट होता है बैक में, इट इज अटैच्ड एट द बेस में अटैच्ड होते हैं. जो फ्रंट पार्ट होता है दैट इज ओपन, दैट इज केप्ट ओपन सो दैट इट इज फ्री. और वो जो फ्री पार्ट होता है दैट इज मेंट फॉर स्पीकिंग. इसी कारण हम बोल सकते हैं. नंबर फोर्थ इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ द फूड. अभी खाना जब हम खाते हैं हम बोलते हैं नमक कम है, ज्यादा है, मीठा है या खट्टा है या कड़वा है. ये 4 टाइप के टेस्ट होते हैं. ये टेस्ट हमें कौन बताता है? ये हमें टंग बताती है. नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से टंग जो है हमें बताती है कि कौन सा टेस्ट है. नाउ द टाइप्स ऑफ टेस्ट. टेस्ट 4 मेन टाइप के होते हैं. 4 मेन टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर.
स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, जैसे हमारी जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, शुगर, शुगर केन, दे ऑल आर स्वीट इन टेस्ट. सेकेंड इज सॉल्टी, नमकीन, जो भी चीजें हम नमकीन खाते हैं दैट टेस्ट इज सॉल्टी. थर्ड कम्स इज सार, सार मतलब खट्टा, जैसे लेमन जूस है, दैट इज सार टेस्ट. Then the last of all the tastes, that is bitter. Bitter means कड़वा. For example, neem leaves, नीम के पत्ते हो गए, आपका bitter gourd, that is करेला, they all are bitter in taste. अब हमने जो खाना खाया, हमें कैसे पता चला कि वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है? That is because of the taste buds which are present on our tongue. हमारी टंग में छोटे छोटे टेस्ट बड्स एट डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि जो हमने खाना खाया है वो कैसा है. अभी ये जो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेस्ट बड्स ऑन टंग. डिफरेंट टेस्ट एरियाज ऑफ टंग. स्वीट, सबसे पहले मीठे से शुरू करते हैं. द टेस्ट बड्स विच डिटेक्ट द स्वीट टेस्ट, जो बताएंगे हमने जो खाना खाया है वो मीठा है, दे आर लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द टंग, जस्ट एट द टिप ऑफ द टंग. ठीक है, वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स वो बताएंगे खाना कैसा है, मीठा है. जस्ट बिहाइंड, मतलब ये स्वीट है, जस्ट उसके पीछे जो टेस्ट बड्स होंगे दे विल टेल अस जो आपने खाना खाया है वो कैसा है, नमकीन है. Taste buds on the sides of the tongue. This is the tongue. These are the two sides of the tongue. Now the taste buds which are present on the sides, both the sides, यहाँ पर भी, they will tell us that this food which we have taken or which we have eaten, that is sour, खट्टा है वो. And the back side of the tongue, टंग का जो बिल्कुल पिछला हिस्सा होता है, वहां पर जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, they will tell us about the बिटर फूड, कि ये जो खाना हम खाया ये बहुत कड़वा है. तो कौन सा टेस्ट बड सबसे पीछे प्रेजेंट होता है, बिटर. अभी आपको कैसे आ सकता है क्वेश्चन इन द एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में कि जो टेस्ट बड्स विच आर प्रेजेंट एट द टिप, वो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, यू हैव टू टिक. सो दैट इज द स्वीट वन. सो दैट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिवाइज दिस इन द ऑर्डर. जो स्वीट टेस्ट है that is present at the tip, just behind is salty, on the sides of the tongue is the sour, and at the back is bitter. Now some animals eat grass, and those animals who eat grass are called as herbivores. For example, cows, buffaloes, deers, antelopes, and there are so many. अभी ये जो grass होता है which they eat, it contains a carbohydrate called cellulose. Since it's a carbohydrate which is present in the grass, so it is bound to give them energy. तो animals को energy कौन देता है? This carbohydrate जो घास खाते हैं उसमें जो carbohydrate present है, cellulose. This cellulose is bit difficult to digest. थोड़ा बहुत ही हार्ड होता है इसको डाइजेस्ट करना, इसलिए इट्स बेटर कि जितनी बार जो एनिमल है इसको च्यू करे, the better it is for the animal. Plus, the grass eating animals जो होते हैं उनके जो स्टमक होता है उनमें एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, certain bacteria present होते हैं which will act on this cellulose and will digest it. For example, हम काउ के केस में देखेंगे. अब in the case of cow what happens is उसका जो स्टमक होता है it is divided into 5 main compartments. जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है एंड इट इज कॉल्ड एज rumen. Okay, now when the cow or any other animal like buffalo, they will eat grass. They will, जब उसको घास को खाएंगे, they will swallow it. वो एकदम swallow करेंगे with a very little bit of chewing. chew नहीं करते हैं वो they just keep on eating. They keep on swallowing the grass. और वो जो ग्रास होता है यहां से खाया एंड इट विल continue to get collected in the largest part of the stomach which is called as rumen. ये जो डॉटेड पार्ट है यहाँ पे वो क्या होगा, कलेक्ट, वो खाती जाएगी, थोड़ा सा च्यू करेगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो कहाँ कलेक्ट होता जाएगा, रूमेन में. इस रूमेन में प्रेजेंट होते हैं द
certain bacteria which act upon the cellulose. वो खा रही है वो सारा घास, और वो घास जो है वो रूमेन में कलेक्ट हो रहा है. रूमेन में जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज हैं, दे विल स्टार्ट देयर एक्शन ऑन द सेल्यूलोज. अभी वो खा ही रही है और उनका एक्शन स्टार्ट हो गया है. ओके, नाउ व्हेन द cow will get time to sit, or whenever it is her resting time और वो बैठ गई, then what will happen, this partially digested food which has been acted upon by the bacteria, now this is called as cud. CUD, what it is called? Cud. This will automatically in very small amounts come to the mouth of the cow again. थोड़ा थोड़ा करके उसके माउथ में आएगा. अब वो अच्छे से, क्योंकि अभी वो रेस्टिंग टाइम है उसका, अच्छे से वो बैठेगी, अच्छे से वो उसको च्यू करेगी उस खाने को जिसको हमने कट बुलाया, उसको अच्छे से च्यू करेगी. अब इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, द कमिंग बैक ऑफ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच इज कॉल्ड कट टू द माउथ ऑफ द ruminant, it is called as chewing the cud, or it is called as rumination. क्या बोलते हैं इसको? हाँ, rumination. ये कड वापस आएगा माउथ में, अच्छे से काउ जो है उसको च्यू करेगी, एंड देन अगेन इट विल गो बैक इनटू द स्टमक ऑफ द काउ, but now not in rumen but to the other compartments of the stomach. Then it will gradually go to the small intestine for digestion and absorption. So this is called as rumination or the chewing the cud. अब इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज च्यूइंग ऑफ कड? तो आपने क्या करना है कि जो ruminants होते हैं जैसे काउ, इसमें क्या है, when it swallows the food, partially digested food which is called cud, when it is the resting time of the cow, this partially digested food will come again back to the mouth. It will continuously, it will because of the presence of cellulose, it will keep on chewing it properly. इसको हम chewing of cud और rumination कहेंगे. अभी मैंने आपको बताया कि जो stomach होता है काउ का, it has got 5 compartments. I beg your pardon, it is 4 compartments, the largest being the rumen. Now next question arises is कि जो cellulose digesting bacteria होते हैं, they are not present in human body, but we eat cellulose like in the form of spinach. हम leaves जो खाते हैं, lettuce हम खाते हैं, तो हम जब खाते हैं तो फिर cellulose digesting bacteria तो है ही नहीं. Then how come cellulose is digested in our body? It is not digested in our body. हमारी बॉडी क्या करती है, इन लीव्स में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन बहुत ज्यादा कंटेंट में प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई वी से इट्स वेरी हेल्दी. सो ये सब कुछ चीजें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेस सेल्यूलोज, एंड दिस cellulose acts as a fiber or roughage which helps in easy passing of the stools. That's why it is very important to eat these leaves. Okay, now the next topic is amoeba. Okay, amoeba क्या होता है? It is a microscopic, means हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, organism which consists of a single cell. एक ही सेल प्रेजेंट होता है इसमें. इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, और माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं. कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली पॉन्ड्स में इसको देखा जाता है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अगेन द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी हैव सीन. तो उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. बाहर क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन. देन देयर इज अ न्यूक्लियस. There are present 2 type of vacuoles, contractile vacuoles and food vacuoles. Contractile vacuole का क्या काम है? क्योंकि ये पानी में रहता है, so how much water to be retained inside its body, इसकी बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, that is determined by these contractile vacuoles. Next comes is food vacuoles. जो खाना अमीबा ट्रैप करता है, that is in the form of food vacuoles inside its body. और ये सारे structures जो होते हैं, they are embedded in the cytoplasm. अभी the very important feature of amoeba is that it has no definite shape. अभी this sounds weird ना, कि इसकी कोई अपनी shape नहीं है. Shape क्यों नहीं है? It is very smart.
बिकॉज इसको जहां जाना होता है या जैसी शेप बनानी है, इट पुशेस इट साइटोप्लाज्म इन दैट डायरेक्शन. जैसे सपोज दिस इज द, अगर इसको आगे की तरफ जाना है, सो व्हाट इट विल डू, ये अपना साइटोप्लाज्म इस तरफ को शिफ्ट कर देगा और ऐसे करके शेप बना देगा. तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, क्योंकि जब एक साइड को साइटोप्लाज्म पुश करेगा तो एक आउटग्रोथ सा बन जाएगा ना, जैसे ये बना. अब ये जो आउटग्रोथ बनाया उसने और द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड एज सूडोपोडियाज. क्या बोलते हैं इनको? सूडोपोडियाज. और इस सूडोपोडिया का अमीबा की लाइफ में इट हैज गॉट इमेंस इंपॉर्टेंस. अभी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे. नेक्स्ट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा क्या खाता है और वो किस तरीके से जो खाता है अपना फूड है उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करता है. नाउ सिंस अमीबा लिव्स इन पॉन्ड, क्योंकि पॉन्ड में रहता है और वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सो इट फीड्स ऑन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन दैट पॉन्ड. अब ये लुक एट दीज डायग्राम्स, दीज आर ऑल अमीबास. ठीक है, ये उसके अलग अलग शेप्स है जब उसने खाना खाना है. शेप्स क्यों चेंज होती रहती? क्योंकि अमीबा की कोई शेप नहीं होती. इट कैन चेंज इट्स शेप कैसे? बाय क्रिएटिंग pseudopodia. और वो कैसे बनते हैं? बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन द डायरेक्शन इट वांट्स. अभी ये अमीबा है और एक फूड पार्टिकल, सो दिस इज द फूड पार्टिकल, ये उसके सामने आया. अब ये क्या करेगा? ये अपने दो सूडोपोडियाज ग्रो करेगा इस तरीके से. ठीक है, यहां पर ये फूड पार्टिकल है, इसने दो सूडोपोडियाज इस तरीके से ग्रो किए. After some time, these two pseudopodias which were surrounding the amoeba, they will join. पहले सराउंड कर रहे थे, फिर ये ज्वाइन कर जाएंगे एंड देन दे विल फॉर्म अ ट्रैप. इसमें आप देखो, ये जो सूडोपोडियाज पहले सराउंड कर रहे थे, फिर ये ज्वाइन कर जाएंगे एंड देन दे विल फॉर्म अ ट्रैप. उसको फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लिया. अब ये जो फूड पार्टिकल है, along with little bit of water, along with little bit of water, this food particle will make a food vacuole. So now this is food vacuole. इसके अंदर फूड पार्टिकल है और थोड़ा सा बाहर उसके पानी है. इस फूड वैक्यूल को हम टेम्परेरी स्टमक भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा. आई टेल यू क्यों बोलेंगे टेम्परेरी, वो बाद में आपको पता चल जाएगा. टेम्परेरी स्टमक ऑफ अमीबा, दिस इज द फूड वैक्यूल. अभी ये जो एरोज हैं, व्हाट आर दीज? These are the digestive enzymes which will be secreted by the cytoplasm. This dotted substance is the cytoplasm. Okay. अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इट्स फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे और जो फूड प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करेंगे इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. ऑब्वियसली बिकॉज जो खाया है जैसा प्लांट एनिमल, वो तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, उसको तोड़ना पड़ेगा इनटू सिंपलर वंस. सो वो जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म से सिक्रीट होके फूड वैक्यूल में जाएंगे और उसको खाने को जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट करेंगे. अब ये जो खाना है डाइजेस्ट होने के बाद ये जो एरोज, पहले एरोज अंदर को लगाए थे, क्यों? क्योंकि एंजाइम साइटोप्लाज्म सिक्रीट कर रहा था अंदर की तरफ टुवर्ड्स द फूड वैक्यूल. एक बार जब खाना पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, अब ये जो खाना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो यहां से ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. इसलिए मैंने एरोज बाहर की तरफ लगाए हैं और साइटोप्लाज्म में ये सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि ये डाइजेस्टेड है और ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. एब्जॉर्ब होने के बाद जो अमीबा है वो उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी एनर्जी, अपनी मूवमेंट, रिपेयर के लिए, सबके लिए वो यूज करेगा और इस तरीके से अमीबा ग्रो करेगा. नाउ अभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? वी हैव अ प्रॉपर इजेशन के लिए अनडाइजेस्टेड जो खाना रह गया है, फूड रह गया है, उसको हमारे को निकालने के लिए वी हैव एनस फ्रॉम वेयर द फीसेस विल कम आउट. व्हाट अबाउट इन अमीबा? क्योंकि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल तो सबके पास रहता है. इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, खुद ही छोटा है, एक सेल का बना है, तो खाना भी उतना सा ही खाएगा. सो व्हेन द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी ऑफ द अमीबा, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है
This is the cell membrane. I repeat, when the considerable amount, considerable मतलब कुछ amount जो undigested food का है, that will be accumulated in the body of the amoeba, the cell membrane will break. वो टूट जाएगी and that undigested waste material which I have shown in the form of dots that will come out. This cell membrane वो फिर से जुड़ जाएगी and then this in this way the process of egestion will take place in amoeba. Now, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है that what are the similarities and differences in the digestion of human beings and amoeba? Similarities में एक similarity है कि हमने जब डाइजेस्ट करना है, हमारा फूड जब स्टमक में डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट होता है, तब भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं. इधर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं. साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है और अंदर जाता है. तो डाइजेशन जो होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस. और डिफरेंस क्या है? वी हैव प्रॉपर माउथ जिससे हमारा खाना अंदर जाता है एंड फॉर इजेशन वी हैव प्रॉपर एनस. जबकि इनके केस में, अमीबा के केस में ऐसा नहीं होता. सो दिस क्वेश्चन समटाइम्स इट comes, the similarities and the difference in the digestion of amoeba and the human being. So this was all about the chapter nutrition in animals. I hope I have been able to understand, make you understand the concepts, and if you're liking it, please do share and subscribe. Thank you.